Today's topic is speaking part 2. Describe a time when you were busy. We will see how you can use a range of words, collocation and idioms so that you can create an imaginative story to impress examiner and get your desired band score. चलिए देखते हैं story. Describe a period when you were busy. ऐसा पीरियड आपको मेंशन करना है जब आप बिजी थे. When it was, कब थे आप बिजी, what you did during the period, वो पूरे समय आपने क्या किया, what made you busy, आप बिजी किस वजह से हुए, how you felt about the experience और आपका एक्सपीरियंस कैसा था. तो चलिए जाते हैं रोड मैप के हिसाब से. With job, study and side gigs like creating YouTube videos and Instagram reels, my schedule keeps me hard pressed from early morning to late evening. This hustling bustling life allows me handful amount of time once in a blue moon. Lately, I'm unsure of the dates, but I nearly had missed an engagement ceremony of one of my buddies. I had a conversation with him and other friends as well that what did we wear, when would we reach, how we would make an entry, everything was planned out. Now story gets interesting. The day comes. I take two batches of GPSC class before the midday. No one calls. I didn't have the engagement in my mind. After the lectures, I had a lunch with my partner. We chatted about others' wedding, but it didn't ring a bell. Followed to this, I went to my publisher's house for the promotion of my book, the Book of Basics and Advanced Verbs. We had a continuous talk for about 3 hours, including marketing, offer, make it available worldwide, royalty, and stuffs like that. Still, no one calls. On way back to my class, I had a kind of a strange feeling that I was missing something but couldn't think of what it was. Around 5:30, my other friend happened to call me asking where I was. I was like, at class. Why? He screamed that reminded me with a few words start with F. I calmed his nerve down, making him realize my schedule. He again, with big words, said, how in the name of God could this happen? Because I was supposed to be there near 4 p.m. I right away left the class to reach there with the clothes I was wearing. A little bit past the driving limit, and guess what happened? The police handed me a ticket on the way, and I managed to convince them to let me go as I wasn't carrying any document. I eventually got there, nevertheless, missed the pleasure of couple's entrance. I had to listen a lot from everyone, for the function had already reached its end. Make a long story short, I lost my temper, but it was necessary not to let something like this happen again. And therefore, I made up my mind that I would set reminders for each function days earlier so as not to confront similar scenario. आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी बहुत ही लंबी खींच दी है, पर मुझे कनेक्टेड रखनी थी ना, इसीलिए मैंने लंबी करी है. आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, राइट. मुझे वर्ड्स दिखाने थे, फ्रेजेस दिखाने थे और कोलोकेशन भी. इसी वजह से ये थोड़ी बहुत खींच गई है स्टोरी, राइट. तो चलिए पीछे जाके देखते हैं कि ये सारे वर्ड्स के मतलब क्या है. साइड गिग्स यानी कि साइड हसल, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ कि मेन जॉब है उसके अलावा हम जो साइड में पार्ट टाइम जॉब यू कैन से जो करते हैं ताकि हम थोड़ा पैसा कमा सके वहीं से, राइट. तो उसको बोला जाता है साइड गिग्स. फिर है कीप्स हार्ड प्रेस्ड. हार्ड प्रेस्ड यानी कि बहुत ही बिजी. कीप्स यानी कि रखना, तो बहुत ही बिजी रखता है. ये कोलोकेशन है, ऑरेंज वर्ड्स. फिर है हसलिंग बसलिंग लाइफ यानी कि भागदौड़ वाली जिंदगी, राइट. वंस इन अ ब्लू मून यानी कि बहुत ही लंबे समय में कभी कभार, रेयर केस में आप ये कह सकते हो.
फिर है हैंडफुल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम तो है पर कितना है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट वर्ड है लेटली, इसका मतलब रिसेंटली होता है। तो जब भी आप रिसेंटली वर्ड ट्राई करें यूज करने के लिए तो बेहतर है आप ये वर्ड यूज कर ले, क्योंकि फॉरेनर्स जो है ये लेटली वर्ड को बहुत ही पसंद करते हैं। फिर है बडीज, तो मैंने किसका रिप्लेसमेंट दिया है, पता ही होगा शायद आपको, फ्रेंड्स का। नेक्स्ट देखते हैं हैड कन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत होना। तो मैं सीधा ही लिख सकता था कि आई टॉक्ड, पर कोलोकेशन दिखाना है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो हैड कन्वर्जेशन। फिर है मेक एंट्री, यहाँ पर भी मैं सीधा ही लिख सकता था कि हाउ वी वुड एंटर सॉरी, कोलोकेशन दिखाने के लिए क्या यूज कर दिया, मेक एंट्री। फिर प्लान आउट, यानी कि पता ही होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, ना कि सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि अब से जो मैं मेंशन करने वाला हूं ना, वो कैसा होगा, प्रेजेंट में होगा। सिचुएशन में क्रिएट करके दे रहा हूं ना, इसी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है कि अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। द डे कम्स। फिर मिड डे, यानी कि दोपहर के 12 बजे। आई डिडंट हैव द एंगेजमेंट इन माई माइंड। अब ये फ्रेज एक्चुअल में ऐसा है कि आई डिडंट हैव ब्लैंक इन माई माइंड। तो ये जो एंगेजमेंट है ना, ये सिचुएशन है। तो आप कोई भी सिचुएशन इसकी जगह पर आप रख सकते हो, जैसे कि बर्थडे, या फिर वेडिंग, या तो फिर मीटिंग। यानी कि पूरा फ्रेज का मतलब क्या हो गया कि मैं पूरा का पूरा उसको भूल ही चुका था। राइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर हैड अ लंच, अगेन हैड कन्वर्सेशन की जैसा ही है। फिर चैटेड, चैटेड यानी कि फोन पे चैट करना नहीं, या बातचीत करना, उसको भी चैट बोल सकते हैं। फिर इट डिडंट रिंग अ बेल, ये फ्रेज तब यूज होता है कि जब आप कोई भी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, फिर भी आपको कोई भी आइडिया या फिर क्लू नहीं मिल रहा है, तब ये आप यूज कर सकते हो। फिर है फॉलोड टू दिस, शायद आपको हैबिट होगी यूज करना ये फ्रेज आफ्टर दैट, इसके बजाय आप ये यूज कर लो फॉलोड टू दिस, मीनिंग सेम ही होंगे। फिर है कंटिन्यूअस टॉक, यानी कि जो बातचीत है वो कैसी है, कंटिन्यूअस, लगातार है, बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है। फिर है स्टफ्स, स्टफ्स का मतलब थिंग हो गया, जो हम थिंग यूज करते हैं ना उसके बजाय आप स्टफ्स यूज कर लो। नेक्स्ट वर्ड है ऑन वे बैक, कौन सा रिप्लेसमेंट मैंने यूज किया है, रिटर्न की जगह पर हम यूज करते हैं ना व्हेन आई रिटर्न टू होम, नहीं, उसके बजाय आपको क्या यूज करना है, ऑन वे बैक टू माई होम। स्ट्रेंज फीलिंग, फीलिंग तो है पर कैसी है, स्ट्रेंज, अजीब फीलिंग आ रही है। फिर थिंक ऑफ, थिंक ऑफ यानी कि किसी भी पर्सन या फिर चीज या फिर कोई भी सिचुएशन के बारे में सोचना, तब आप ये यूज कर सकते हो थिंक ऑफ। फिर 5:30, यानी कि कितने बजे थे, 5:30। हमको ये स्कूल में सिखाया गया था ना कि 5 बजे तो 5 o'clock, 5:15 है तो 5:15, 5:30 है तो 5:30, और 5:45 है तो 5:45। नहीं पता होगा तो मैंने बता ही दिया है। फिर हैपन टू, हैपन टू तब यूज होता है कि जब आप एक्सीडेंटली किसी को मिलते हो, या फिर एक्सीडेंटली आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिचुएशन देता हूं कि मुझे एक बुक चाहिए, इंग्लिश की कोई भी चाहे वो चलेगा, और मेरे पास में मेरा एक फ्रेंड भी खड़ा है, तो बाई चांस उसके पास इंग्लिश बुक है, तब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई ना, तब आप ये यूज कर सकते हो हैपन। तो मैं क्या बोलूंगा कि माई फ्रेंड हैपन टू हैव एन इंग्लिश बुक, राइट। आई होप आपको ये सेंस समझ आया होगा। तो मूव ऑन करते हैं। काम्ड नर्व डाउन, यानी कि जो गुस्सा है ना, हाइपरटेंशन, वो क्या कर देना, कम कर देना। फिर मेकिंग हिम रियलाइज, इससे या फिर इसके अगले वाले वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि मेक तब यूज होता है कि जब आप कोई भी काम किसी व्यक्ति के पास करवाना चाहते हो जबरदस्ती, या तो फिर ऑर्डर के द्वारा, तब ये वर्ड यूज होता है मेक, ठीक है। फिर बिग वर्ड्स, यानी कि बड़े बड़े शब्द। अब यहाँ पर मैंने एफ लिखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि भी कौन से वर्ड के बारे में बात हो रही है। राइट्स अवे, इसका मतलब है इंस्टेंटली, हम वर्ड यूज करते हैं ना इमीडिएटली, तो उसके बजाय ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, राइट अवे, तुरंत ही। फिर देखते हैं गैस व्हाट हैपेंड, ये फ्रेज तब यूज होता है कि जब आप अपनी स्टोरी में कोई ट्विस्ट लाना चाहते हो, सामने वाले को कंफ्यूज करके या फिर उसको इंटरेस्ट जगा के। फिर हैंडेड टिकट,
जो चालान बोलते हैं ना, चालान दे दिया, तो उसकी जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया, हैंडेड टिकट, वो लोकेशन दिखाना था इसीलिए। फिर कैरिंग डॉक्यूमेंट्स, हम कॉमनली ये यूज करते हैं कि आई डिडंट हैव एनी डॉक्यूमेंट, बट उसके जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, कैरिंग एनी डॉक्यूमेंट। फिर है इवेंचुअली, यानी कि फाइनली, अंत में, नेवरदलेस, ये एक्चुअली एडवर्ब है और तब यूज होता है कि जब आप कोई भी सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो परिणाम के लिए और उसका जो रिजल्ट है वो विपरीत आए, अनएक्सपेक्टेड आए, तब ये वर्ड यूज होता है नेवरदलेस। मिस्ड प्लेजर, यानी कि जो आनंद था वो क्या कर दिया, मिस कर दिया। फिर हैड टू लिसन अ लॉट, यानी कि जब कोई भी हमको सुनाता है ना, तब ये फ्रेज यूज होता है, हैड टू लिसन अ लॉट, यानी कि मुझे सुनना पड़ा। फिर मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि बहुत ही लंबा खींचने के बजाय आपने क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो लॉस्ट टेम्पर, यानी कि गुस्सा आ जाना, बोलते हैं ना आई गॉट एंग्री, उसके बजाय क्या यूज करना है, आई लॉस्ट माई टेम्पर। फिर नीचे है मेड अप माई माइंड, यानी कि ठान लेना, दिमाग में ही मैंने ठान लिया था कि अब मुझे ये करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब ये वर्ड यूज होता है। एंड लास्ट है सो एज नॉट टू, ये नेगेटिव है, पहले मैं आपको अफर्मेटिव दिखा देता हूँ कि सो एज टू, यानी कि इन ऑर्डर टू, के हेतु के लिए। यहाँ पर मुझे नेगेटिव करना था तो नेगेटिव कैसा आएगा, सो एज नॉट टू। अगर इन ऑर्डर टू आपको यूज करना है तो कैसे बनेगा, इन ऑर्डर नॉट टू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के, एक्चुअली स्पीकिंग पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर के साथ, विथ द रेंज ऑफ वर्ड्स, collocations, phrases, so you can make an interesting story and can impress the examiner. तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।